امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کو گوانتانامو بے جیل بھیجنے کا منصوبہ، ڈونلڈ ٹرمپ نے ریکن ریلی ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ نیا قانون غیر قانونی تارکین وطن کی فوری گرفتاری کا پابند بنائے گا۔ سنگین جرائم میں گرفتار غیر قانونی تارکین وطن کو فوری حراست میں لیا جائے گا۔ گوانتانامو بے جیل میں مجرمان کے لیے 30,000 بستر موجود ہیں۔ امریکی صدر نے ہوم لینڈ سیکیورٹی اور پینٹاگون کو ہدایت جاری کر دی۔ امریکی صدر نے وفاقی امداد منجمد کرنے سے متعلق حکم نامہ منسوخ کر دیا۔ امریکہ میں جرائم پیشہ افراد کے لیے کوئی معافی نہیں۔ جو بائیڈن کی سرحدوں سے متعلق پالیسی احمقانہ تھی۔ سابق حکومت کی وجہ سے امریکہ میں جرائم پیشہ افراد آئے۔ غیر ملکی تنظیموں کو $1.7 ارب کی ادائی روک دی گئی۔ حماس غزہ کے فنڈ بم بنانے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ US کی رپورٹ سے پتہ چلا فنڈز غزہ کے عوام کو نہیں ملے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں خطاب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وفاقی امداد منجمد کرنے کا حکم نامہ واپس لینا پڑ گیا۔ پاکستانی نیاد امریکی جج لورین علی نے حکم پر عمل رکوایا۔ 41 سالہ خاتون جج لورین علی خان امریکہ میں وفاقی ڈسٹرکٹ جج ہیں۔ لورین علی 50 سال قبل والد کے ساتھ امریکہ منتقل ہوئی تھی۔ لورین کے والد ماہر امراض قلب ڈاکٹر محمود اور ان کی اہلیہ امریکی فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ درخواست گزار نے امریکی صدر کا وفاقی فنڈنگ روکنے کا حکم نامہ عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ محبوب کی تلاش میں کراچی پہنچنے والی امریکی خاتون کی کہانی میں نیا موڑ۔ خاتون کا امریکہ واپس جانے سے صاف انکار۔ طیارے میں شور شرابہ کرنے پر آف لوڈ کر دیا گیا۔ 33 سالہ انیجا اینڈریو کا نڈال احمد نامی لڑکے سے ملنے کا اصرار۔ خاتون ایئرپورٹ سے نوجوان کو ملنے پہنچی تو گھر والے گھر بند کر کے چلے گئے۔ خاتون تنہا ہیں، ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ SDPO ڈیفنس خاتون کا کہنا ہے کہ وہ خود جب چاہے گی اپنے وطن واپس چلی جائے گی۔ خاتون کے اصرار پر انہیں واپس گارڈن کے علاقے میں پہنچا دیا گیا۔ SSP سٹی امریکی خاتون وزٹ ویزا پر ہے۔ ایئرپورٹ حکام خاتون کا امریکی قونصلیٹ کی مدد لینے سے بھی انکار۔ امریکن خاتون لڑکے کی محبت میں کراچی آئی۔ حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد جاری۔ آج 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہائی ملے گی۔ اسرائیل 110 فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ اسرائیلی قیدیوں میں 19 سالہ فوجی خاتون اگم برجر، 29 سالہ خاتون اربیل یہود اور 80 سالہ گیڈی موشے موزس شامل۔ حماس کی جانب سے 5 تھائی باشندوں کی رہائی بھی متوقع۔ 110 فلسطینی قیدیوں میں عمر قید کے 32 قیدی جبکہ 30 بچے شامل۔ امریکی سرمایہ کاروں کا پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار۔ سرمایہ کاری کرنے آیا ہوں، مذاکرات نہیں۔ امریکہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ امریکی سرمایہ کار مصنوعی ذہانت، ریئل اسٹیٹ، معدنیات میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں۔ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کے پاس اپنا گھر ہو۔ تعمیرات کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ 1 ماہ میں 30 منزلہ عمارت تعمیر ہو سکے گی۔ آئل اور گیس سیکٹر پر بھی پاکستان میں کم توجہ دی گئی ہے۔ امریکی اربپتی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ جینوٹری بیچ کی صحافیوں سے گفتگو۔ رچرڈ گرینیل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا۔ امریکہ میں پاکستان بارے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ماضی میں امریکی عوام کو پاکستان کی حقیقی تصویر نہیں دکھائی گئی۔ پاکستان کی موجودہ قیادت امریکی قیادت کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے۔ بائیڈن حکومت کا پاکستان کے ساتھ رویہ مناسب نہیں تھا۔ ٹرمپ کی سربراہی میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ جینٹری بیچ وزیراعظم شہباز شریف سے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان کی سرمایہ کاری کی وسیع استعداد اور امید افزا اقتصادی صلاحیت پر تبادلہ خیال۔ جینٹری بیچ کی پاکستان کی بے پناہ اقتصادی صلاحیت کی تعریف۔ حکومت کی سرمایہ کاری دوست پالیسیز کو سراہا۔ پاکستان کی مستقبل کی ترقی کی رفتار پر اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے پاکستان میں کاروباری مواقع میں گہری دلچسپی پر شکریہ ادا کیا۔ سازگار کاروباری ماحول اور مضبوط ادارہ جاتی تعاون کو یقینی بنانے کے عزم کو دہرایا۔ وزیراعظم نے پاکستان کے اسٹریٹجک جغرافیائی محل وقوع اور ہنرمند، باصلاحیت اور نوجوان افرادی قوت کا بھی حوالہ دیا۔
रिचर्ड ग्रेनेल के ट्वीट दुनिया ने देखे हैं। हमने किसी को अप्रोच नहीं किया। अमेरिका से सरकारी वफ्द नहीं आया। ये प्राइवेट दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। कभी नहीं कहा नई अमेरिकी इंतजामिया आएगी और बानी बाहर आ जाएंगे। बानी किसी का भी बैटिंग ऑर्डर तब्दील कर सकते हैं। अलीमीन गंडापुर ने सबसे पहले जुनैद अकबर को मुबारकबाद दी। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल बाकायदा कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल की तौसीक कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद मुतनाज़ा पीका एक्ट कानून बनकर नाफिजुल अमल हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरात। सहाफ़ियों के पीका एक्ट नामंजूर के नारे। सहाफ़ियों का मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ जिदोजहद तेज़ करने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत करके मायूस किया है। पूरा यकीन था आसिफ जरदारी बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ अदालती जंग भी लड़ेंगे। बिल में बहुत सी ऐसी शिकें हैं जिन पर हमें अदालत से रिलीफ मिलेगा। सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट का मुजाहिरीन से खिताब। PFUJ का मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने उस बिल पर दस्तखत करके हम सबको मायूस किया है। सदर मुमलिकत के दस्तखत करने के बाद अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता जद्दोजहद का रास्ता है और दूसरा हमारे पास आईनी रास्ता है कि हम अदालत में अपनी जंग लड़ेंगे। DGFIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने DGFIA को ओहदे से हटाने की हिदायत की। यूनान कश्ती हादसे से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट पेश न करने पर वजीर आजम ने बरहमी का इजहार किया था। हम इंक्वायरीज को बरवक्त मुकम्मल ना करके वजीर आजम DGFIA की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। अहमद इसहाक जहांगीर को OSD बना दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA जान मोहम्मद को DGFIA का इजाफी चार्ज दे दिया गया। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। नए DGFIA की तैनाती के लिए 3 नाम सामने आ गए। सलमान चौधरी, डॉक्टर उस्मान अनवर, राजा रिफत मुख्तार के नाम शामिल हैं। अख्तर हयात IG खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से फारिग। जुल्फिकार हमीद IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद सैयद अली रजा और SSP ऑपरेशंस अरसलान शाहजेब को ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद जवाद तारिक DIG इस्लामाबाद तैनात। सैयद अली रजा को DIG सिक्योरिटी और हेडक्वार्टर्स की जिम्मेदारी मिल गई। शुएब खान SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद तैनात। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का सदेबा। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला। अजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क्याम पर इत्तेफाक। कमर्शल, रिहायशी और ज़राई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। कमर्शल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग यकसां कलर और डिज़ाइन की तजवीज़ का जायज़ा। हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर इल्तबा दरखास्तें फौरी निपटाने का हुक्म। टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की ज़मानत होती है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा। फ़ज़ाई जायज़ा लिया। मनसूबे का दायरा बढ़ाने की हिदायत। मरियम नवाज की मनसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे की तकमील से ट्रैफिक का देरीना मसला हल हो जाएगा। मुआशी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। मंसूबे की तकमील के लिए फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मरियम नवाज की हिदायत। चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल नहीं। मुज़ाकरात पे खान साहब ने पहल की है, अगरचे खान साहब जेल में हैं और हमारे साथ बड़ी सख्तियाँ हुई हैं। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे।
हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात हों और कोई हल निकले। हम पर सख्तियां की गईं, फिर भी मुज़ाकरात में पहल की। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए। हुकूमत मुज़ाकरात में पहले ही संजीदा नहीं थी। हमारे सिर्फ 2 मुतालबात थे, सियासी कैदियों की रिहाई और कमीशन का क़याम। 1 माह मुज़ाकरात हुए, कोई हल नहीं निकला। टीका एक्ट काला कानून है, किसी सूरत कबूल नहीं करते। 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। सूबे में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अली मीन पर मुकम्मल एतमाद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात। जुनैद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली शामिल। मुलाकात में पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह और नूर आलम भी मौजूद। स्पीकर की अपोजिशन अरकान से सियासी माहौल बेहतर बनाने की अपील। हर मामले का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। स्पीकर रियाज सादिक की गुफ्तगू। अरकान ने ईवान को बेहतरीन अंदाज में चलाने पर स्पीकर के किरदार को सराहा। बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सूबे में मुबैना बैड गवर्नेंस और करप्शन की शिकायत मिल रही हैं। आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, गवर्नेंस बेहतर करें। सूबे में मुबैना करप्शन और बैड गवर्नेंस से मुतल्लिक शिकायत का खात्मा करें। बानी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पोस्टिंग ट्रांसफर्स में मेरा कोई किरदार नहीं। अरकान असम्बली पोस्टिंग ट्रांसफर्स के लिए सिफारिश करते हैं। वज़ीर आला केपी का जवाब। गजा में लाखों फ़लस्तीनियों की तबाहाली, इलाकों में वापसी। 5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी तबाहशुदा शिमाली गजा में लौट आए। गजा में 15 माह बाद पहली बार घरेलू गैस की फराहमी बहाल। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज के जुल्म और बर्बरियत जारी। जनीन और तलकरम में फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। मज़ीद 21 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। 60 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 घंटे में गजा के हॉस्पिटल्स में 63 लाशें लाई गईं। 59 लाशें तबाह इमारतों, मैदानों और सड़कों से उठाई गई हैं। गजा पट्टी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 47,417 तक पहुँच गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। इसराइली वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एजेंसी बराए मशरिक़ वुस्ता से मुलाकात। स्टीवर्ट कॉफ और नेतन्याहू का मुस्तक़बिल किराए अमल पर गौर। ट्रंप के खुसूसी एजेंसी बराए मशरिक़ वुस्ता ने गजा का दौरा भी किया। फ़लस्तीनी शहरियों की जबरी बेदखली जुल्म है। मिस्र फ़लस्तीनियों की जबरी हिजरत के जुल्म में शरीक नहीं हो सकता। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मिस्र की सलामती के लिए खतरा है। मिस्र ट्रंप इंतज़ामिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए 2 रियासतों का क़याम ही तसादुम का हल है। अमरीका के साथ मिलकर गजा में क़याम अमन के लिए कोशिशें करेंगे। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी। जनूबी सूडान में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। 20 मुसाफिर हलाक। तैयारे में पेट्रोलियम कंपनीज के मुलाजमीन सवार थे। तैयारा यूनिटी स्टेट के ऑयल फील्ड से दारुल हुकूमत जोबा रवाना हुआ था। हलाक होने वालों में 2 चीनी, 1 भारतीय शहरी भी शामिल है। चैंपियंस ट्रॉफी का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। मेट्रो के पहले मरहले में तमाम 30% ऑनलाइन टिकट्स फरोख्त। शायकीन की गैरमामूली दिलचस्पी। ऑनलाइन टिकट्स की तादाद में 10% इजाफा। दूसरे मरहले में बराह रास्त टिकटों की फरोख्त का आगाज 3 फरवरी से होगा। चंद घंटों में टिकट्स की फरोख्त खुशाइन है। पाकिस्तानी शायकीन अपनी टीम के साथ खड़े हैं, जो अच्छी खबर है। ज़्यादा से ज़्यादा तमाशाइयों को मैचेस दिखाने की सहूलत देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। कदाफी स्टेडियम के दाखिली रास्ते पर रनर बैंड का देव हैकल मुजस्समा नस्ब। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और UAE में होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी में कौन से कौमी स्टार जगमगाएंगे, मुमकिना नाम सामने आ गए। मुमकिना स्क्वाड का ऐलान आज होने का इम्कान। कौमी स्क्वाड में फकर जुमान की वापसी मुतवक्के। इमामुल हक स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। उस्मान खान और खुशदिल शाह की भी एंट्री मुतवक्के। 15 रुकनी स्क्वाड में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, साउद शकील, सलमान अली आगा शामिल होंगे। तैयब ताहिर, आमिर जमाल, अबरार अहमद, नसीम शाह भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हुसनैन और कामरान गुलाम भी मुमकिना स्क्वाड में शामिल होंगे।